अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 12 ज़िलक़अदा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला इस शख्स की दुआ कबूल नहीं फरमाते जिसका दिल दुआ मांगते वक्त अल्लाह ताला से गाफिल हो, अल्लाह ताला के गैर में लगा हुआ हो। और अब सुर्खियाँ। छठे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम पार्टियों के सरबराहान की मुहिम जोरों पर, वोटरों को राग़िब करने की कोशिश जारी। धान की फसल पर बोनस का ऐलान, किसानों के साथ धोखा, केटीआर की कांग्रेस पर शदीद तनकीद। राजमंड्री में वोटों की गिनती की तैयारी के इंतजाम, 3 परती सिक्योरिटी, हर हल्के के लिए 14 टेबल मुकर्रर, कलेक्टर माधवी लता का बयान। मदीना पहुंचने वाले आज़मीन इबादत में मसरूफ, तेलंगाना हज कमेटी के इंतजाम की आज़मीन ने की सितारिश। और अब तफसील। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर केटीआर ने एक्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए तनकीद की है। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों के साथ दगा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गारंटी कार्ड में धान की फसल के लिए 500 रुपये बोनस देने का वादा करके अब उसको महज बारीक चावल तक महदूद किया जा रहा है। इंतखाबात के दौरान खूब तशहीर की गई, मगर इख्तिदार हासिल होने के बाद हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं। केटीआर ने रिमार्क किया कि ये अवामी हुकूमत नहीं बल्कि किसान मुखालिफ हुकूमत है। గ్యారంటీలు అన్నారు, 420 హామీలు ఇచ్చారు, అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపెట్టారు. ఆనాడు అభయహస్తం అన్నారు, ఇవాళ భస్మాసుర హస్తమై చాలా మందిని కాటేస్తున్నది ఆ హస్తం. నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని బీజేపీ నాయకులను కూడా ఎన్నికల సమయంలో అడిగినా, మాకంటే ఎక్కువ భారతదేశంలో తెలంగాణ కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు గత 9.5 ఏళ్లలో ఇచ్చిన ఒక్క ప్రభుత్వాన్ని చూపెడతారా, చూపెట్టి మాట్లాడండి అని అడిగినా సమాధానం రాదు. ఎందుకంటే లేదు. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన కేసీఆర్ గారిదేమో అబద్ధమైపోయింది. ఒక్క ఉద్యోగము 6 నెలల్లో ఇవ్వకుండా 30,000 ఉద్యోగాలు నేను ఇచ్చినానని బొంకుతున్న రేవంత్ రెడ్డి గారిదేమో ఇవాళ నిజం అన్నట్టుగా ఈ యూట్యూబ్ వాళ్ళు చూపెడతా ఉన్నారు. ఒక్క మాట ఆలోచించండి. ఒక ఉద్యోగం ప్రభుత్వంలో ఇవ్వాలి అంటే ముందు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి, తర్వాత దానికి రిటర్న్ టెస్ట్ పెట్టాలి, ఇంటర్వ్యూ పెట్టాలా, ఆ తర్వాత అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇవ్వాలి. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు బొంకుతున్నారు, పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు. 30,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా అని చెప్తున్నాడు. ఒక్క నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిండా రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక? మరి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండానే ఉద్యోగాలు ఎట్లా ఇస్తారు? तेलंगाना हुकूमत ने बारीक चावल की खरीदारी पर फी कुंटल 500 रुपये बोनस देने का फैसला किया। इसके अलावा तेलंगाना काबीना ने सरकारी स्कूल्स के तालीमी मियार में इजाफे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी समेत दूसरे फैसले किए हैं। काबीना के अहम फैसलों से रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने वाकिफ करवाया। We need a change. The Telangana society needs a change, and we are going for a change, and we take education as a priority. Thirdly, we have discussed on this barrage, the Kaleshwaram project, Medigadda, Annaram and Sundilla barrages, where National Dam Safety Authority has given an interim report. We would like to go by, the government is also very firm to go by the technical experts report, especially the Dam Safety Authority, which is the ultimate authority to direct and to give suggestions and to advise this government how to go further in terms of this Medigadda, in terms of Annaram, in terms of Sundilla. These 3 things have been discussed at a length, and we have taken into consideration about the paddy procurement, which has gone in a good way, in a rightful spirit. Not even a grain of the farmer has been lost, and the MSP has been given to the farmer. At the same time, the remaining left paddy should also be taken on at a very fast speed. So MSP has been given, the farmers, whatever the crop they have reaped, the 3 days the payment has also been given. And time to come, we have also decided, the cabinet has also decided to give 500 rupees bonus for the fine rice, fine paddy quality. So this is our poll promise, and we are implementing it first for the fine rice variety. हैदराबाद में एसीबी अहदेदारों ने 6 मकामात पर तनक़ी की। बदउनवानियों के इल्जामात का सामना कर रहे मुअत्तलशुदा सीसी, CS, ACP
उमा महेश्वर राव के घर में पुलिस ने तनखी अंजाम दी। इब्राहिमपट्टनम कत्ल केस में रुश्वत लेने के इल्जाम का सामना करने वाले उमा महेश्वर राव एक रियल्टर के कत्ल केस में मुअत्तली का शिकार हैं। उमा महेश्वर साहती इंफ्रा केस में भी तफ्तीशी ओहदेदार थे। उमा महेश्वर के अशोकनगर के घर समेत उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों में एक ही वक्त में एसीबी ने धावे किए हैं। धावों के दौरान कलीदी दस्तावेजात जब्त करने की खबर है। तालीमी मरकज कहलाने वाले उरगुलू में हशीश ड्रग्स से सनसनी फैल गई है। तलबा की जिंदगी से खेलने के लिए ही ड्रग्स माफिया बच्चों को नशे का आदी बनाने के लिए ड्रग्स फरोख्त कर रहे हैं। पुलिस और नारकोटिक्स एनालिसिस ओहदेदारों के मुश्तरका ऑपरेशन में 1 किलो हशीश का जखीरा पकड़ा गया और उससे मुतालिक एक स्मगलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 किलो हशीश की बाजार में कीमत 5 लाख रुपये बताई जाती है। वारंगल एसीपी नंदीराम नायक ने बताया कि चॉकलेट की शक्ल में हशीश को फरोख्त किया जा रहा है। రవాణా చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర స్మగ్లర్ను మరి మా మటవాడ పోలీస్ యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో వరంగల్ విభాగము వారు ఒక వ్యక్తిని చింతల వెంకటరాజు అలియాస్ బాబీ సుమారు 1 లీటరు అంటే సుమారు 5 లక్షల విలువ చేసేటువంటి ఆయిల్ని మరి స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ హాషిష్ ఆయిల్ని గాంజా నూనె అని కూడా అంటారు। ఇది గాంజా మొగ్గల నుండి ఈ కొన్ని రకాల కెమికల్స్ను యూజ్ చేసి ఈ యొక్క ఆయిల్ను తయారు చేస్తారు। ఈ ఆయిల్ ఎంతో హానికరం, గాంజా కంటే 4 రెట్లు హానికరమైనటువంటి ఆయిల్ ఇది। ఈ ఆయిల్ని ముఖ్యంగా ఐస్ క్రీమ్స్, చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్, ఈటరీలలో ఇది యూజ్ చేస్తారు। ఇది తిన్నటువంటి పిల్లలు కావచ్చు, పెద్దలు కావచ్చు, ఎవరికైనా కావచ్చు అనేక రకాల సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి। हैदराबाद के गनपाक के करीब बीजेवाईएम का धरना कशीदा रुख इख्तियार कर गया। नौजवानों से किए गए वादों पर अमलावरी करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाते हुए बीजेवाईएम के कारकुनों ने गनपाक के पास एहतजाज किया। साथ में फौरी जॉब कैलेंडर जारी करने और बेरोजगार भत्ते की इजराई की मांग की। एहतजाज करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 10 నిమిషాలు మేము ఉద్యోగుల కోసం, నిరుద్యోగుల కోసం వస్తే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ప్రభుత్వం కానీ మమ్మల్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది। అందరికీ మా వాయిస్ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం। అమరుల స్తూపం కాడికి మేము వెళ్ళడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। మా నిరసన మొత్తం కూడా అమరుల స్తూపం నుంచే ప్రారంభం అవుతుంది। ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక రుణమాఫీ చేస్తామని, అదేవిధంగా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని విధంగా చుట్టుపక్కల చెప్పిందో పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ యువకుల్ని పూర్తిగా నష్టం చేస్తున్నటువంటి యువకుల పార్టీ ఇవాళ గాడిద గుడ్డు చూపించి యువకుల్ని మోసం చేస్తా ఉన్నారు। ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉద్యోగుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ। हजारों की तादाद में तेलंगाना के आज़िमीन हज मदीना मुनव्वरा सलामती के साथ पहुंच गए हैं और वहां पर रोज़े अथर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक का शर्फ हासिल कर रहे हैं और मस्जिद नबवी में इबादत में मशगूल हैं। मदीना पहुंचने वाले बाज़ आज़िमीन ने इंतज़ामी सहूलियात पर हज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद से मदीना 19 तारीख के दिन खैरियत से पहुंच गया। 2 घंटे ताख़ीर हो गई रूम मिलने के लिए। हज कमेटी वाले काफ़ी हेल्प करे और उन लोग आके बात करके हमारे को रूम दिला दिए। हम अब खैरियत से रूमों में पहुंच गए हैं। हज कमेटी वाले बहुत अच्छा हमारी मदद करे और हमारा काम बना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने से बिल्कुल होटल बिल्कुल क़रीब है। हमारा लगेज भी सब खैरियत से आ गया। फैसिलिटीज़ के साथ जो मुझे अहलिया और मेरे दोस्त अहबाब को जिस अंदाज से हरम को भेजा गया है, बहुत बेहतरीन अंदाज फैसिलिटीज़ के साथ, मैं तेलंगाना हज कमेटी के ममनून मशगूलों खुसूसन खुसरो पाशा साहब जिस अंदाज से हमको जो फैसिलिटीज़, जिस अंदाज से हमको इज़्ज़त और ऐश आराम के साथ मक्का और मदीना मुनव्वरा सफ़र और हज के सफ़र के लिए भेजा गया है, इनका मैं बेशुमार करोड़ों एहसानमंद हूँ और इनके हक़ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको बेहतरीन नेमत बदल नसीब फरमाए।
मेरा कवर नंबर है 2727-2। हम लोग हैदराबाद से कल रात में रवाना किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मदीने के पास हमको रहायश मिल चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह रहना सहने की सफ़र की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छी से मिल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बस सफ़र थोड़ी थकावट की वजह से बस चल रहा है। फिर होटल तो बिल्कुल मस्जिद नबी के बाजू में आस-पास में दिए, बिल्कुल 200 मीटर की भी दूरी भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया साहब ने फरमाया कि हज में मुशक्क़तें और तकालीफ अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनती हैं। उन्होंने हाजियों को मशवरा दिया है कि वह हज कमेटी की फराहम करदा सहूलियात से फ़ायदा उठाएं और छोटी मोटी अदम सहूलतों पर शिकवे गिले न करें, क्योंकि हर बड़े काम में कुछ न कुछ कोताही रह ही जाती है। उन्होंने हज और उम्रे के उमूर की खुशू व खुशू के साथ अंजाम दही का मशवरा दिया और कहा कि अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर ज़्यादा वक्त इबादतों में मसरूफ़ रहें। बाज़ मरतबा इज़्दिहाम, भीड़ और लाखों की पब्लिक की वजह से कुछ इंतज़ामात के अंदर 19-20 हो जाए और कुछ तकलीफ़ें अगर हाजी को पेश आ जाएं तो ऐसे मौके पर लिल्लाह अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए उसको बर्दाश्त किया जाए। ये हमारे अपने अजर और हमारे अल्लाह के पास मकबूल होने का एक अलामत और ज़रिया है। इसलिए तकलीफ़ों को बुनियाद बनाकर, आने वाली छोटी मोटी सौबतों को बुनियाद बनाकर, उसकी जो इस वक्त एक समाज के अंदर, हाजियों के अंदर बाज़ मरतबा कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो उसके क्लिप बनाकर वायरल करते हैं और कोशिश ये की जाती है कि हमारे साथ किसी किस्म की सहूलतें नहीं हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, शिकवे शिकायतें की जाती है, जिसका नतीजा ये है कि अच्छे खासे हाजी भी परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि इस किस्म की तकलीफ़ों और सोबतों को छोड़कर सहूलियात जो हमें मिल रही हैं उनकी तरफ हमारी निगाह होनी चाहिए, उनको हम प्रमोट करना चाहिए और उन्हीं हाजियों को हम एक दूसरे के लिए तसल्ली का सामान बनना चाहिए। काउंटिंग का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल करने के लिए गोदावरी जिले के राजानगरम की ननैया यूनिवर्सिटी में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कलेक्टर माधवी लता ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी को नो मैन जोन करार दिया गया है और स्ट्रांग रूम्स के 3 परती हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि रियासती पुलिस के अलावा CRPF दस्ते भी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि एक हल्के की गिनती के लिए 14 टेबल्स कायम किए जाएंगे। మనకి 13వ తారీఖు ఎప్పుడైతే పోల్ అయిపోయిందో ఆ రోజు రాత్రికి ఈవీఎంస్ అన్నీ కూడా నన్నయ్య యూనివర్సిటీకి చేరుకున్నాయండి. 7 నియోజకవర్గాలకి సంబంధించి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ రూమ్స్లో భద్రపరచడం జరిగింది. యాజ్ పర్ ఈసీఐ ప్రోటోకాల్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారము. అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ కూడా 3 టైర్స్లో ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. అవుటర్ మోస్ట్ పెరిమీటర్, మిడిల్ అండ్ ఇన్నర్ పెరిమీటర్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి CAPF బలగాలు అనేది అక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత మన పోలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది నో మ్యాన్ జోన్గా ప్రకటించాము. వెళ్ళే వాళ్ళకి కంపల్సరీగా ID కార్డ్స్ అనేది ఉండాలి. ID కార్డ్స్ ఉంటేనే వారికి అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఈ స్ట్రాంగ్ రూమ్స్లో ఉన్న ఈవీఎంస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ సైమల్టేనియస్గా కౌంటింగ్కి సంబంధించిన అరేంజ్మెంట్స్ కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ కౌంటింగ్ సిబ్బందికి కానీ కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్కి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరికి మొబైల్స్ అనేది అలౌడ్ లేదు ఆ రోజు. ఆ మొబైల్స్ అన్నిటికీ కూడా మొబైల్ కలెక్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఒకటి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. వెహికల్స్ కూడా లోపలికి అలౌ చేయరు. ఫుడ్ కూడా లోపల మనమే ఇస్తాము. ఫుడ్ కూడా బయట నుంచి అలౌ చేయము. కౌంటింగ్ హాల్ లోపలికి ఈవెన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. మధ్యలో రౌండ్స్ మధ్యలో డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఓన్లీ ఒక పెన్ను పేపర్ మాత్రమే లోపలికి అలౌడ్ కాబట్టి వారు అది నోట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి 17C కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఏదైనా మొబైల్లో మాట్లాడాలి అనుకుంటే వారు మళ్ళీ కిందికి వచ్చేసి వాళ్ళ కౌంటింగ్ హాల్ నుంచి బయటికి వచ్చి మొబైల్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చి మొబైల్ తీసుకొని మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా అన్ని రకాల కౌంటింగ్కి చర్యలు, అదేవిధంగా లా అండ్ ఆర్డర్ కూడా ఎక్కడ బ్రీచ్ అవ్వకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం. మనకి ఈవీఎం కౌంటింగ్ అయితే 14 టేబుల్స్ వేస్తాము ప్రతి కౌంటింగ్ హాల్లో. సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో డివైడెడ్ బై 14 వేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ వస్తుంది. మనకి ఎక్కువ మనకి ఉన్న పోలింగ్ స్టేషన్స్ రాజమండ్రి రూరల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి 20 రౌండ్లు వస్తుంది. మనకి అతి తక్కువ పోలింగ్ స్టేషన్స్ కోవూరులో ఉన్నాయి కాబట్టి కోవూరు నియోజకవర్గంలో దానికి 13 రౌండ్స్ వస్తాయి. సో మిగిలినవన్నీ 17, 15, 17 అలా ఉన్నాయి. సో దాన్ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ డిసైడ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ సపరేట్ టేబుల్స్ మీద కౌంటింగ్ జరుగుతుంది.
तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों में हल्की से तेज बारिश होने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। अहदेदारों ने चंद अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हवा के दबाव में कमी के सबब जुनूबी तेलंगाना में बारिश होने का ख्याल जाहिर किया गया है। करीमनगर, पेदपल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, खम्मम, सूर्यपेट समेत चंद अजला में बारिश होने की महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है। जिन अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है वहां पर जिला इंतजामिया चौकस हो गया है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने 5 जून से 11 जून के दरमियान मानसून की तेलंगाना में आमद की पेश कयासी की है। అక్కడక్కడ జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. మనకి ఇంకా ఉత్తర తెలంగాణలోని కొంచెం ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరిగే అవకాశం అయితే ఉంది. వర్ష సూచన మాత్రం దక్షిణ ఈశాన్య తెలంగాణలోనే ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలైన మహబూబ్ నగర్, జోగులాంబ, కద్వాలి పరిసర ప్రాంతాలు, అలాగే ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాలైన ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో మనకి అక్కడక్కడ జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే జల్లులు కూడా కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ జల్లులు కూడా ముఖ్యంగా ఉరుముల మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. ఈదురుగాలులు కూడా గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది వచ్చే 5 రోజులు కూడా। हैदराबाद में भी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर साबिक वजीर आजम को खिराज पेश किया गया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा और कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने हैदराबाद में वाक़ राजीव गांधी के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कायदीन ने राजीव गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए और आंजिहा ने वज़ीर आज़म को खिराज पेश किया। अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म मोदी पर इल्जाम लगाया कि बौखलाहट का शिकार होकर अपोजिशन के खिलाफ बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को मरकज में इंडिया इत्तेहाद हुकूमत तश्कील देगा और दिल्ली को रियासत का दर्जा मिल जाएगा। 84 साल के हैं, मोदी जी 74 साल के हैं। किसी बुजुर्ग के बारे में ऐसी बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री को? शोभा देती है? भाई आप अलग अलग पार्टी में भी हो, लेकिन एक इज्जत से तो बात करनी चाहिए। बंबई गए, बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ऐसे तो सड़क छाप भाषा है। ये भाषा प्रधानमंत्री की है? ये भाषा प्रधानमंत्री की है? एक दिन बोले इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो ये सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीनेंगे भाई? ये क्या है? तो बौखला गए बुरी तरह से। उनको दिख गया कि वो जाने वाले हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा होगी। केंद्र में अपनी सरकार बनने जा रही है। और दिल्ली वालों, आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। अपना एलजी होगा जो काम रोकेगा नहीं, काम करने में विश्वास रखेगा। शुमाली हिंद में गर्मी की लहर बरकरार है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और गुजरात में अगले 5 दिनों तक गर्मी की बरकरार रहने की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने जून के पहले हफ्ते में मौसम में तब्दीली का कयास लगाया है। पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसा ही सिनेरियो बना हुआ है। राजस्थान में भी टेम्परेचर 47 तक टच कर रहे हैं, दैट इज़ 46 प्लस हैं। सिमिलरली अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहाँ भी टेम्परेचर 47 तक हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ भी 45 प्लस हैं। तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने पूरा जहाँ रेड अलर्ट दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहाँ में भी हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रखा है, ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली बिहार पे भी हीट वेव पड़ रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद वहाँ थोड़ी कमी हो जाएगी क्योंकि समुद्र से हवाएं आएंगी, ईस्टर्ली वेव्स आएंगी। तो मेन ईस्टर्ली वेव जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी तो टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। कब तक हम लोगों को हम अनुमान नहीं लगा रहे कि टेम्परेचर में गिरावट रहेगी। ऑलमोस्ट जैसे टेम्परेचर चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे, 1 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के चंपरान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन उन्हें बुरा भला कह रहे हैं जबकि अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में,
और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है। लोकसभा इलेक्शन की 6वें मरहले की इंतखाबी मुहिम जारी है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने इंडिया इत्तेहाद की कामयाबी का दावा किया। उन लोगों को बुला करके बैठा करके कहा कि निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में, फिर डिफेंस को लेकर के डिफेंस एक्सपो किया गया और जनता को झूठे सपने दिखाए गए कि निवेश आएगा। G20 का भी आयोजन हुआ, लेकिन आज देखिए जमीन पर कोई निवेश नहीं आया है। और अगर निवेश आया होता तो हमारे नौजवानों को कुछ न कुछ रोजगार मिल गया होता। न रोजगार न नौकरी। और जब कभी भी प्रदेश का नौजवान परीक्षा लिखने गया तो उसका पेपर लीक हो गया। और एक पेपर लीक नहीं हुआ, यहां पर नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए होंगे, सब परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए। एक के बाद एक पेपर लीक हुआ, एक के बाद एक पेपर लीक होता चला गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर हिंदुस्तान में एक रोजा शोक मनाया गया। दिल्ली में सरकारी दफातरों पर कौमी परचम को सुरंगो रखा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और इजहार ताजियत किया। हिंदुस्तान और ईरान के देरना और गहरे बाहमी ताल्लुकात रहे हैं। T20 आलमी कप के लिए टीम इंडिया के इंतखाब पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। हरभजन सिंह ने कहा कि वो टीम में एक फास्ट बॉलर की कमी महसूस करते हैं। टीम में 4 स्पिन गेंदबाजों की शमूलियत पर हरभजन सिंह ने एतराज जताया और कहा कि रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया जाता तो बेहतर होता। कप की टीम देखिए चुन तो ली है और जो टीम चुनी है उसमें बैटिंग भी ठीक ठाक है, गेंदबाजी में एक फास्ट बॉलर मुझे लगता है थोड़ा सा कम है और जो एक खिलाड़ी रह गया रिंकू सिंह, मुझे लगता है कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। 20 गेंद में अगर 60 भी चाहिए तो वो बंदे में दम कम है कि वो मार सकता है। तो रिंकू सिंह रह गए, वो उस चीज़ का थोड़ा सा मुझे ऐसा हो रहा है कि ये बंदे को टीम में होना चाहिए था। 4 स्पिनर मुझे लगता है कि थोड़े से ज़्यादा हो गए, 3 स्पिनर काफ़ी थे वहाँ पे, बट एनी हाउ टीम सेलेक्ट हो गई है। सो आई विश टीम इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दे ब्रिंग द कप बैक। वेस्ट इंडीज में अभी आपने बात करी तो लग रहा है कि 4 स्पिनर ज़्यादा महंगे पड़ सकते हैं। 4 स्पिनर कभी भी खेलेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है कि एक भी मैच होगा जहाँ पे आपको 4 स्पिनर खेलते हुए देखेंगे एक साथ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बेंच पे ही बिठाना है तो फिर मुझे लगता है कि ऐसा एक विकल्प लेके जाओ कि आपका कोई भी फिर खिलाड़ी जब इंजर्ड होता है या कोई जगह बनती है तो रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी जो है वो सीधा अंदर आए। तो खेलेंगे 2 ही स्पिनर, जडेजा एक तो खेलेंगे या उनके साथ कुलदीप खेलेंगे या चहल खेलेंगे। हो सकता है किसी में 3 खेलें तो कुलदीप और चहल दोनों खेलें और रविंद्र जडेजा बॉलिंग करें। तो वो वहाँ पे कंडीशंस को देख के पता लगेगा कि क्या जो है वो कॉम्बो बनेगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 6ठे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम पार्टियों के सरबराहान की मुहिम जोरों पर, वोटरों को राग़िब करने की कोशिश जारी।
धान की फसल पर बोनस का ऐलान, किसानों के साथ धोखा, केटीआर ने की कांग्रेस पर शदीद तनकीद। राजमंड्री में वोटों की गिनती की तैयारी के इंतजाम, 3 परत सिक्योरिटी, हर हलके के लिए 14 टेबल मुकर्रर। कलेक्टर माधवी लता का बयान। मदीना पहुंचने वाले आज़मीन इबादत में मसरूफ, तेलंगाना हज कमेटी के इंतजाम की आज़मीन ने की सताइश। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।